as you can see on your screens, like these are the some diet which helps to engulf the lipids through the mouth, and it goes into the your stomach. Then the metabolism part is in has been done in your liver, and it digests through your intestine, right? So what are the enzymes involved, how this pathway has been followed for the metabolism process, this we all discussed in your lipid metabolism part, right? So first enzyme involved, that is your lipolysis, which is especially for the lysis of your lipid complex droplet, right? So ultimately it goes into your, it change into your fatty acids, and fatty acids again the complex form of lipid. It again this complex form is breakdown into the simpler ones by the process of the beta oxidation. As I earlier mentioned in my each and every lecture of your biochemistry, that every pathway of in metabolism is interconnected to each other, right? So as you can see here, that your this part, your this fatty acids is break down by the help of the beta oxidation process into the which molecule, acetyl CoA. Now this acetyl CoA is goes into your citric acid cycle, remember the TCA cycle, right? Again it assimilation your carbon dioxide, and that goes to your electron transport chain, and ultimately your body gets the energy in the form of ATP. Now this acetyl CoA also forms the ketone bodies. Now you can see in and also you need to be go your and read your previous lecture, that how the classification, you just memorize the things that your lipid is into the various part like chylomicrons, VLDL, HDL, HDL, ठीक है, LDL, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस स्लाइड्स में, ठीक है? तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इट ब्रेक डाउन, हाउ द बॉडी गेट द एनर्जी फ्रॉम योर लिपिड पार्ट, राइट? So move to our next slide. What is the definition of lipid metabolism? Lipid metabolism generally helps to synthesize your structure and the functional, functionals of the body of your each organ by forming your phospholipids, glycolipids, sphingolipids, cholesterol, prostaglandins, etc. And these are specially आपके जो बाकी फंक्शनिंग है, जो हार्मोनल कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें आपके कौन कर रहे हैं, लिपिड्स कर रहे हैं परफेक्टली आपकी बॉडी को फंक्शनिंग में मेंटेन रखने के लिए. दीज आर वर्किंग फॉर द डिफरेंट आपके मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं. अल्टीमेटली योर बॉडी गेट्स द एनर्जी विच यू नीड टू डू वर्क, राइट? So here you can see the simply the lipolysis enzyme involved, your mobilization of fatty acids into the tissue has been involved, then your एक्टिवेशन जब फैटी एसिड्स की हो जाती है वो साइटोसोल में जाएंगी, साइटोसोल के बाद आपके वो कहाँ पे आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में अल्टीमेटली कौन सा प्रोसेस चलेगा, बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन चलेगा तो मतलब आपको एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेटली इन द एटीपी, एंड आपके एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे जो आपके टीसीए साइकिल को कंट्रोल करेंगे. एंड दिस वे, in this by following these all pathways, it helps to linked interconnected each and every pathway with the other बायोमोलिक्यूल्स पाथवे ऑल्सो, ठीक है? उसके बाद आ जाइए, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी, ठीक है? हाउ डज इट हेल्प. उसके बाद आपका आ जाता है कि हाउ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डाइजेस्ट एज यू टेक इन योर डाइट, राइट? आपने लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट लिया, वो मिक्सिंग सॉल्ट बाइल साल्ट्स के साथ होके माइसिल्स बनाएगा, देन पैनक्रिएटिक लाइपेज के साथ वो मिलके आपकी फैटी एसिड्स बना देगा, मोनोग्लिसराइड्स, मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इट इज़ रेडी. नाउ ट्राई असाइल जो ग्लिसरॉल होते हैं आप डाइट में से लेते हो, वो ब्रेक डाउन होंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन द लाइपेसिस एंजाइम विल कम, देन बाइल सॉल्ट्स विल कम एंड ट्रांसपोर्ट टू एडिपोज टिश्यू हो जाएगा, राइट? This picture you need to be see very clearly, and you have to understand the entire process from this slide. Okay, ये बहुत बेसिक स्लाइड था, ये हम आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. देन कैसे मोबिलाइजेशन होती है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स की, किस चीज़ के लिए होती है? एक तो आपके हार्मोनल्स कंट्रोल करने के लिए ट्राइसाइल की मोबिलाइजेशन होती है, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, लाइपेसिस एंजाइम को
ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आपका लिपोप्रोटीन्स बन गए, उनको भी ट्रांसपोर्ट भी करवाना है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो आपका इंसुलिन है वो लिपोलाइसिस को इनहिबिट करता है, उस चीज़ को रोकने के लिए। अभी फैट मोबिलाइजेशन जो है वो सबसे पहले तो ब्रेक डाउन करेगी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। फिर आपके फैटी एसिड्स वहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएंगे एंड ग्लिसरॉल फॉर्म्ड हो जाएगा। अल्टीमेटली दिस जो हाइड्रोलिसिस है ये आपको फैटी एसिड देगी। यहाँ तक सिर्फ आपको फैटी एसिड मिल रहा है। फैटी एसिड फर्दर आपके वो जो बाकी सेक्शंस में जाएगा जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होनी है, वो फर्दर रिएक्शंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी बीटा ऑक्सीडेशन, जो हम कब से बात कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फैटी एसिड अब बन गया, आपकी बॉडी ने फैटी एसिड बना दिया, ठीक है। जो प्रीवियस हमने स्लाइड्स देखी वहाँ पे फैटी एसिड्स बन गया, अब बीटा ऑक्सीडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फैटी एसिड्स का प्रोसेस है वो आ गया, यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले तो ये एक बार आप पाथवे देख लीजिए, उसके बाद वन बाय वन हम स्टेप सारे डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, वो देख लिया। उसके बाद इन्होंने असाइल को ए डिहाइड्रोजनेस प्रोसेस, हाइड्रेट्स प्रोसेस था, ये ऐसे चलेगा, अपवर्ड चलेगा ये, ठीक है। ये देखिए अल्टीमेटली आपको एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल मिल गया। Don't worry, don't feel tense to see the complex pathway. We will gonna continue and understand the entire process, right? ये भी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपके दो प्रोसेस में एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में काम करते हैं, इन द सेम वे ये भी फेड स्टेट एंड फास्टिंग स्टेट में काम करेगा, ठीक है। जब आपने कुछ खाया होगा तब ब्रेक डाउन होगी, एंड जब आपने नहीं भी खाया होगा तब भी बॉडी को एनर्जी देने के लिए इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो मूव योर नेक्स्ट स्लाइड। सो बीटा ऑक्सीडेशन का सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है। आपके फैटी एसिड्स जो आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक डाउन करता है एक आपको एनर्जी देने के लिए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका जो कन्वर्ट होता है असाइल को ए चेन, फैटी एसिड्स में असाइल को ए चेन, एक लॉन्ग चेन रहता है, ठीक है। ये चेन जब ब्रेक डाउन होगा तो एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल मिलेंगे, FADH2 मिलेगा, NADH मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे एंटर कर जाएंगे सिट्रिक एसिड साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट स्लाइड में दिखा दिया था प्रोसेस, ठीक है। तो अभी ये ATP एनर्जी दे रहा है, FADH दे रहा है, NADH दे रहा है, ठीक है। तो बाकी ये सारे सेल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली दिस is the only process which is also help to controlling the entire functioning of your body. Here you can see beta oxidation, how does it work? ये असाइल कोए मॉलिक्यूल है, यहाँ से ब्रेक कर देगा, ये मॉलिक्यूल जनरेट हो गए। उसके बाद आपको अल्टीमेटली ये 2 स्टेप में एक आपको समराइज करके दिखाया हुआ है, तो एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल मिल गया। नाउ आ जाइए कि व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड टू फॉर्म अ एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल। दिस basically beta oxidation follows the 4 reaction. One is your oxidation, hydration, again cleavage. जो beta oxidation है in the mitochondria, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो साइटोसोल जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें हो जाएगा, हमारी बॉडी में ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। डिहाइड्रोजेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, थायोलाइसिस, ये हम वन बाय वन गोना डिस्कस। डिहाइड्रोजनेशन क्या होती है कि फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें असाइल को ए इज ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कौन सी एंजाइम से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर एंजाइम इन्वॉल्व्ड दैट इज योर हाइड्रोजिनेस, इसाइल ए को हाइड्रोजिनेस। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो ब्रेक डाउन होंगे, जो सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड थे अब वो टूटेंगे, एंड असाइल को ए चेन एंटरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में जाने के लिए वो रेडी है। एंड प्रोडक्ट इस रिएक्शन का ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल को ए ट्रांसफिरेस होगा, ठीक है। को ए होगा बेसिकली। दिस इज यूजिंग द FAD and produces FADH2 which will enter your citric acid cycle and form ATP। यहाँ तक क्लियर? एंड ATP आपको सबको पता है कि यूज किसके लिए होती है? एनर्जी के लिए। हियर यू कैन सी असाइल को ए, यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा प्रोडक्ट मिला? ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल को ए, राइट।
मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर हाइड्रेशन। अभी हाइड्रेशन में क्या हो गया, सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे भी सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे जो डबल बॉन्ड था ना, जो आपका जो प्रोडक्ट बना था आपका हाइड्रेटेड ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोल कोए, ठीक है, वो फॉर्मिंग करेगा भी एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट कौन सा, एल बीटा हाइड्रोक्साइल को ए विच हैज़ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इस पे होगा, एंड सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी रहेगा। अब इस एनर्जी को एंजाइम कौन सा चाहिए, इनोल को ए हाइड्रेटेस, ठीक है, एंड द स्टेप रिक्वायर्स वाटर ऑल्सो, हियर यू कैन सी द स्टेप इज एडिंग द वाटर। वो अलग बात है कि यहाँ पे डिलीशन ऑफ वाटर भी हो रहा है, इनोल को हाइड्रेटेस की प्रेजेंस में आपको L3 हाइड्रोक्साइल को ए मिल गया। उसके बाद आ जाइए आपका थर्ड स्टेप, दैट इज योर ऑक्सीडेशन। अभी थर्ड स्टेप में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, कार्बन 2 पे, एल बीटा हाइड्रोक्साइल को ए is oxidized by NAD positive in a reaction, and that is catalyzed by 3 hydroxyl CoA dehydrogenase. In the presence of this enzyme, your product will be, you get 3 ketoacyl CoA. यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो 3 कीटो असाइल था, ये आपका लास्ट स्टेप आ गया थायोलाइसिस। अभी यहाँ पे जो आपका ये क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, ठीक है, किस ग्रुप में, एक तो असाइल को ए में, दूसरा एसिटाइल को ए में, दोनों ही आपके एनर्जी देने वाले मॉलिक्यूल हैं। ये फिर से असाइल को ए बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाएगा एंड फिर से आपको एनर्जी देने के लिए इट इज रेडी, राइट। सो एंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत, पीछे जो स्लाइड्स अभी तक हमने किए हैं वहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगर कोई आपको इफ़ यू हैव एनी ट्रबल टू लर्न द नेम ऑफ द एंजाइम, प्लीज़ try to learn with the help of making diagrams, and the enzymes, the name of the enzymes as well as the product are very important from marks point of view as well as to memorize the things, right? So इस चीज़ में अगर आपको कोई दिक्कत है then please mention in the comment section, so may I will try to make the more simpler videos, and I will get to know the feedback from you guys. So what is happening in the end of beta oxidation, जो आपको एसाइल को ए मॉलिक्यूल मिल गया, उसके बाद 4 कार्बन जो एसाइल को ए मॉलिक्यूल एंड 2 कार्बन आपका जो एसिटाइल को ए यूनिट्स आपको ऑब्टेन हो गई फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन। अभी एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, अल्टीमेटली आपको जहाँ पे एटीपी एनर्जी मिल रही थी, अभी ये चेन कंटिन्यू रहेगी टू मेकिंग द एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड इट एंटर एंड कनेक्टेड योर बॉडी फंक्शनिंग, एंड also connected to your other pathways of your body, right? So here you can see this these are the diagrams view how it is interconnected to each other. अभी अगर हम ओवरऑल चीज़ की बात करें तो एनर्जी यील्ड एंड एंड प्रोडक्ट्स, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिले एंड व्हाट आर द एनर्जी वी हैड। जो बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल है इसमें एक तो 1 FADH2 मॉलिक्यूल, एक NADH, and one is your acetyl CoA molecule has been generated, which in terms equivalent to 17 ATP molecules. This combination is very important to remember, ठीक है। सो थेरेटिकली हमें क्या पता चला कि हमें 12 से 16 जो मॉलिक्यूल्स ATP हैं, 12 to 16 ATP molecules has been produced by your beta oxidation cycle. Ultimately you get the energy in a bulk amount, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होता है, एंड अल्टीमेटली ऑल्सो इट यील्ड्स योर वाटर क्वांटिटी, जो सेल्स को आपको फ्लूसिडिटी आपकी जो मेम्ब्रेन को बना के रखने के लिए ज़रूरी चीज़ है वो भी प्रोवाइड होती है, एंड ऑल्सो इट इज़ जो हम क्या देखते हैं कि कैमल्स हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, right? So this cycle has been goes in their body and it restore in their body, so ultimately they don't feel the need to have the water, right? So in the same way this pathway is worked in a very ultimate way in both prokaryotes and the eukaryotes. With this slide we finished our lecture on the
beta oxidation part, and later on we will complete the cholesterol and further जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म कैसी होती है, लिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो डिस्कस करेंगे, एंड इसका रेगुलेशन एट द एंड, ये पार्ट मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगी. सो यू विल गेट टू नो द वेरी इजी एंड द ट्रिक वेज to learn the beta oxidation. It is not the complex. Biochemistry is not complex subject. Just it's a try to understand. You need to be understand each and everything. Please, if you don't understand anything or if you have any query, please mention in the comment section. And thanks for watching, and keep me following on your biology channel, only biology on the YouTube as well as on the Instagram biochem1991. Thanks.